శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలను శరణ కోరుతూ సంకల్పం శ్రద్ధగా పలకాలి. శ్రీహక్కాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోவிந்த. குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்தபிரான் பரன் சென்று சேர் தொழ நம் வினை ஒயுமே என்று அந்த திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. இதோ வைகான சாகம முறைப்படி ஆரம்பமாகிய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே முதலில் சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை ஆரம்பமாகிறது. பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களையும் சேவித்துக் கொள்ளலாம். திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்தது விஸ்வக்சேனருக்கு ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வசனத்துடன்
திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. சேவிப்போம் அந்த வாசுதேவனை. வட்டி காசுல வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாதனம். திருமலையில் திருவேங்கடமுடையானுக்கு முன்பே ஆதிவராக சுவாமி கொலுவீற்றிருந்தார். இவர் அந்த வேங்கடவனுக்கு குலதெய்வமாக வீற்றிருக்கிறார். அதனால்தான் सर्वविघ्नोपशान्तये श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविने विघ्नसे नमः। ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्या। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्चक्रमणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यङ्क्रम करिष्यन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्चक्रमणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासुरत्वशितमानशेषुरत्तरुच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचरकं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतम्बर्णये सहस्रं यज्ञयापाधापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णर्विश्वे देवा मञ्जन्दमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे बुम्बर्णमावाहयामि प्रदेशसमावाहयामि भक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जिगावतं शृङ्गकेतुं सुपुष्पदमाहनं पूर्वाषाढोत्थमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्मं महितो न शम्भो वैराजन्ते धन्यधत्तां प्रैष्यामदेशो व्यवधानामनादर्यामे सस्तान्दरितां दधातु पद्माकारमण्डले बुम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपदीमावाहयामि वामेतिकामावाहयामि सूत्रपदीतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रथमात्यदा कुर्यात् समरिमारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः समन्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रगितां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि। ओम अतो देवा अवन्तो न यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुनादनं तद्विप्रासो विपञ्जमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्न द्रविणोधारासते दीर्घवायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावदप्रसूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते। ओं भूः भूर्भुवस्वरों श्री भगवदाग्नया भगवत्किङ्कररूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्चक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रमा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्येन नमो भजत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्तु अनुराधाने हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम सृतः समीराः। ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयजमानाय पुण्याहं वृद्धिं
భవంతో భ్రమంత కర్మరిధ్యతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధి ఆపోహిష్టామయో భవస్థానపూర్జే తథాతన మహీరణా యతిక్షసే యో పశ్యమతమోరసస్తస్య భార్యతే హనః ఉచతీర్వ మాతరః తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయా యజన్వథ ఆపో జనయథా జనః ఓం పవమానస్వర్జనః పవిత్రేణ విజర్షణిః యప్పోతాసపునాతుమా పునంతమాదేవ జనాః పునంతమనబోధియ పునంత విశ్వ ఆయమః జాతవేదః పవిత్రపదే పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ తే వదీత్యతే అగ్నే కృత్వా క్రతోకుం వృణు యత్తే పవిత్రమర్చిషి అగ్నే వితరమంతర బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవిదః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవి పఠతే దేవ్యాగాద్ యస్యే వక్వేస్తనవో వీతపృష్ఠాః తజామదంతస్య నమార్త్యేషు వజగ్స్యామపతయోరగీణాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మాపునాత్ వాదప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీపయసాపయోభిః అర్దావనీ యజ్ఞే మాపునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరుషిష్ఠైర్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షైః పునాహిమా येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानी रथ्येति वृषभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुतिदं मातरिष्मणा पावमानीर्यो अध्येति वृषभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः वृषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हिनं पावमानीर्तिशन्तनः यमल्लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतकं हितं तेन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनात्मा जातवेदा मूर्तिकिन्त्यापुनात् तच्छंयो रावृणीमहे गातिं यज्ञाय गातिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषणम् शन्नो अस्तुद्पदे संजतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्रात्यां दिशदेमार्तजो मार्तकिन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्तकिन्तां प्रतीत्यां दिशगृहाः पशवो मार्तकिन्तां मदीत्यां दिश्यापा ओषधयो वनस्पतयो मार्तकिन्तां ऊर्ध्वायां दिशरिग्नः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जकिन्तां मदोधराधरेर्नागेभ्यो मार्जकिन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्तप्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समितः सप्तदिक्माः सप्त इमे लोका ये जुटन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ततश्च विश्वावोषधयोरथाश्च येनीशभूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेक्कमेनां मृतिरविप्राणां महिषो मृगाणां येनो गृध्रानागस्वधिर्वणानाकुं सोमः पवित्रमत्यैतिरेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याजमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. கோவிந்த கோவிந்த. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவசனத்தை செவித்துக்கொண்டு திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். இந்த திருமுலை சாற்றுதலிலே அப்படி என்ன விசேஷம் என்றால், தேவர்கள் எல்லாம் அந்த திருமலையப்பனுடைய கல்யாண உற்சவத்தை சேவிக்க வருகிறார்கள். அவர்களை எல்லாம் வரவேற்று அந்த மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் சேர்த்து திருத்துழாய் அக்ஷதை போன்றவைகளை பூஜை செய்யும் பொழுது அவர்களையும் வரவேற்கிறார்கள். அவர்கள் வந்தமர்ந்து அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்து பகவானுடைய கருணா கடாட்சத்தை பெறுகிறார்கள். ஆகவே திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியம் செய்யப்படுகிறது. வராக அவதாரம் என்றால், ஒரு நாள் பிரம்மதேவன் உயிர்களை படைத்து மிகவும் அயர்ந்து விட்டாராம். அவ்வாறு அயர்வாக இருந்த பிரம்மதேவனுக்கு உறக்கம் வந்துவிட்டது. அதனால் படைப்பு தொழிலும், அதாவது சிருஷ்டிகர்த்தாவான அந்த பிரம்மாவுடைய வேலையும் ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்விட்டது. பிரளயமும் உண்டானது. அப்பொழுது ஹிரண்யாக்ஷன் என்னும் அரக்கன் பூமியை சமுத்திரத்தின் அடியிலே கொண்டு சென்றான்.
அந்த பூமியை தன் கால்களால் உதைத்தும் தூக்கி எறிந்தும் விளையாடினான். உறக்கத்தில் இருந்து எழுந்த பிரம்மா தன்னை காப்பாற்றுமாறு தேவர்களை எல்லாம் மகாவிஷ்ணுவை எல்லாம் வேண்டுகிறான். உடனே பகவான் பெரிய வராக அவதாரமாக தரித்து ஹிரண்யாக்ஷனை அழித்து தன் கோரை பற்களால் பூதேவியை காப்பாற்றினார். அந்த சுவாமி வராக உருவில் செய்த இந்த காரியத்தை தேவதைகள் எங்கும் புகழ்ந்து, ஓ வராக சுவாமி, பூமி தேவியுடன் இங்கேயே எழுந்தருளி எல்லோரையும் காப்பாற்றுங்கள் என்று வேண்டினாராம். அப்படி திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை செவித்துக்கொண்டு ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை. ब्रह्मांड नायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि प्रतिसर बंधन देवताराधनं करिष्ये. ओम यमर्पयन्त मनयो हविर्यो जोहिडानर्विबुधा विराजन्ने सम्मयदोषायस्यान्नाग्निविपणानि वदन्तु. ओम शेषमावाहयामि सहस्रदीर्घमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि. रक्षासूत्राधिष्ठान देवताभ्यो नमः. शेषाय नमः. आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतरनर्पणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्तित्यावा पृथिवी सुजेतुना स्वस्तये वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्मं हासः स्वस्ति मित्रावरुण स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृहि स्वस्ति बन्धामनोजरेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्दधराग्नाधाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्यानन्तारक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावामिमारोहेम अम्भो मुचा मांगिरा संगयं च स्वस्त्यात्रेयं मनाधाजदार्क्ष्यं प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागुं शुभाम्. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியம். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். அந்த வராக அவதாரம் எதற்காக என்றால், பூமியை பாதாளத்திற்கு கொண்டு சென்ற அந்த ஹிரண்யாக்ஷனை அழிப்பதற்காக எடுத்த அவதாரம்தான் வராக அவதாரம். அப்படி வராக அவதாரத்திலே சுவாமியுள் கருடாழ்வான் வைகுண்டத்தையும் அங்குள்ள குளத்தையும் வரவழைத்து இங்கே எழுந்தருளினார். அந்த நாள் முதல் இது ஆதிவராக க்ஷேத்திரம் என்றும் இந்த குளம் சுவாமி புஷ்கரணி என்றும் அழைக்கப்பட்டது. அதன் பின் சில 1000 வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த தலத்திற்கு திருவேங்கடமுடையானும் வந்து எழுந்தருளினார். அந்த சுவாமி எதற்கு வந்தார், வந்தவர் இங்கே ஏன் நிலை கொண்டார் என்பதை நாம் பார்க்கும் பொழுது, ஆதி காலத்திலே ஒரு நாள் பவித்திரமான கங்கை நதிக்கரையில் முனிவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து உலக மக்களின் நன்மைக்காக ஒரு யாகத்தை செய்ய எண்ணினார்கள். வேத மந்திரங்கள் மங்களபாத்தியங்களின் நடுவே யாகம் கோலாகலமாக ஆரம்பமாகியது. அப்பொழுது நாராயணா நாராயணா என்ற ஆகாயத்திலிருந்து உலகத்தை கலகத்தை ஏற்படுத்தி கூறிய அந்த நாரதர் அங்கு வந்தாராம். அவரை கண்ட முனிவர்கள் இனி யாகம் நிகழாது என்று கூறிக்கொண்டிருந்த நாரத முனிவர், உலகின் நன்மைக்காக இங்கே யாகத்தை செய்கிறீர்களா? நல்லது என்று உங்கள் கோரிக்கைகளை தீர்த்து வைக்கும் பகவான் யார் என்று கேட்க, சிவனா விஷ்ணுவா பிரம்மனா, யாருக்காக இந்த யாகம் என்று கேட்டாராம். அப்பொழுது முனிவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு அந்த நேரத்திலே நாரத மகரிஷி இவ்வாறு கூறினாராம். மும்மூர்த்திகளான பிரம்மா விஷ்ணு மகேஸ்வரர் ஆகிய மூவரும் சிறந்தவர்களே. ஆகவே உலகிற்கு மகிழ்ச்சியை தருபவர் யார்? பக்தர்கள் வேண்டும் வரத்தை அருளுபவர் யார்? நம் பாவங்களை போக்கி நல்லருளை பொறிபவரும் அந்த பரந்தாமன் யார்? அது மட்டுமின்றி இனி கலியுகம் வரப்போகிறது. அந்த கலியுகத்திலே முன்னதாக
கலிதோஷத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றுபவர் யார் என்று அறிந்து கொண்டு அதன் பிறகு யாகம் செய்யுங்கள் என்றார். இப்படி வந்தவர் கலகத்தை வைத்துவிட்டு சென்று விட்டார். அப்படி அந்த மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்களிலே கலியுகத்திலே வெங்கடனாக அவதரித்தவன் தான் இந்த எம்பெருமான். அவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை பகவானுக்கு முடித்து கொண்டு இப்பொழுது பிராட்டிமார்களின் கரங்களிலே அந்த ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. நாரத மகர்ஷியின் பேச்சால் முனிவர்கள் அனைவரும் குழப்பமாகி அதன் பிறகு அவர் கூறிய அந்த வார்த்தைகள் உண்மைதானே என்று மும்மூர்த்திகளில் யார் உயர்ந்தவர் யார் சிறந்தவர் என்று எப்படி நாம் செய்வது? இது என்ன அவ்வளவு எளிமையான செயலா? யார் நிர்ணயிக்கப்படுகிறார்களோ என்று ஆலோசனை செய்தவாறே இருந்த பொழுது அப்பொழுது பிருகு மகர்ஷியிடம் சென்று தங்களுடைய எண்ணத்தை வெளியிட்டனர். அதற்கு நிச்சயம் தீர்வு காண வேண்டும் என்று பிருகு மகர்ஷியும் எழுந்து நின்று உடனடியாக கிளம்பினார். முதலில் பிருகு மகர்ஷி படைப்பு கடவுளான பிரம்மாவை சேவிக்கும் பொழுது அவர் வீற்றிருக்கக்கூடிய சத்தியலோகத்திற்கு சென்றார். அங்கே தாமரை மலரில் அமர்ந்திருந்த அந்த பகவான் பிரம்மதேவன் வேதநாதங்களுடன் அவர் அருகிலே மற்றொரு வெண்தாமரையிலே அந்த சரஸ்வதி தேவியானவள் ஆசீனமாக அமர்ந்திருந்தாள். இவர்களுடைய வேதநாதங்களுடன் வீணை நாதத்தையும் கண்டு பிருகு மகர்ஷியை பரவசமடைந்து, ஆனால் அவர்கள் இருவரும் கூட பிருகு மகர்ஷியை கவனிக்கவில்லை. கோபம் கொண்ட அந்த பிருகு மகர்ஷி, எவ்வளவு அலட்சியம், இனிமேல் உனக்கு பூலோகத்தில் பூஜையே கிடையாது என்று சாபமிட்டு வந்துவிட்டார். அதன் பிறகு சத்தியலோகத்திலே தனக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தை நினைத்து கொண்டே கைலாசத்திற்கு செல்லும் பொழுது அங்கே அந்த பார்வதியும் சிவனும் கூட இவரை கண்டு கொள்ளவில்லை. உமக்கு நீங்கள் கோபம் கொண்ட முனிவர் நந்தீஸ்வரரை தள்ளிவிட்டு பரமேஸ்வரனுக்கு மிகவும் கோபம் வந்த நிலையிலே, ஓ சிவா, அருவருமாக கடலாய் பூலோகத்தில் லிங்க வடிவில் மட்டுமே உன்னை சேவிக்க வேண்டும் என்று சபித்து விட்டார். மூன்றாவதாக ஆனந்தத்தை அருளும் தெய்வமாக பிருகு மகர்ஷி மனவேதனையுடன் வைகுண்டத்திற்கு வந்து அங்கே எம்பெருமானும் கவனிக்காமல் இருந்ததனால் அவருடைய ஹிருதயத்திலே எட்டி உதைக்கும் பொழுது மகாலட்சுமியானவள் கோபம் கொண்டு அதன் பிறகு கொல்ஹாப்பூருக்கு சென்று விட்டால். அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यक्रमणि औपासनाग्नौ अग्निप्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओं ये तोन्मिन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा पृथ्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धोर आगहि शुद्धशुद्धाभिरुदभिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्ति सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रत्नानि दासते शुद्धो रत्नानि जिक्तसे शुद्धो वायं मयि देवाद्रवणमाजनन्ता मय्यासेरस्तमयि देवहोतिः दैव्याहोदारावणहिन्दपूर्वेरिष्टास्यामदर्वास्वीराः जातवेदो भुवनस्य रेतजिहसिञ्जतपसो युत्यनिश्यते अग्निमश्वत्तादिरिहव्यवाहकं शमीगर्भाञ्जनगिन्योमयो भूः घृतप्रदीको घृतयोनिरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वादिरेतो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिताजिक्षिदेवान् आयुर्ता अग्ने हविनो जठानो घृतं पीत्वा मधजारकव्यं विदेवपुत्रमभिरक्षदादिमम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसव ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तादुषीमतसुरजो वेन आवः समुद्रया पुपवा अस्य विष्टा सदश्च यो नमसदश्च वः ओं भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाजकं सोमो वीरङ्करमण्यन्दरातो साधन्यं विदत्यं भेगं तिस्रवणं योदराज तस्मै ओं भूस्वमवाहयामि ओं भवल्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता प्रथयित्मन्नाकस्य पृष्ठेन मानसदप्तरहीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं
यजमानं च धेहि ओम प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पुष्टे यजमानो सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओम प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परचर्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रथमपरात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिराभो देवीरग्ने अग्ने गुमोग्रयमं यज्ञं यदाग्ने यज्ञपतिं दत्त युष्मानिन्द्रो व्रणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमव्रणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डप्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो तदप्तरुहीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणया सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाजं यच्छाप्रणं यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो तदप्तरुहीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणया को वः प्रणयति स प्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तरः इदं वदन्ति कृतपट्टावदागसहस्रपोषं यजमानेऽन्यञ्चतीः ओं प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्तुनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिगे कृष्णनोमामि ब्रह्मणे कृष्णनोमामि इन्द्राय कृष्णनोमामि अग्नेये कृष्णनोमामि सोमाय कृष्णनोमामि अग्नेये कृष्णनोमामि सोमाय कृष्णनोमामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णनोमामि प्रजापतिगे कृष्णनोमामि ब्रह्मणे कृष्णनोमामि इन्द्राय कृष्णनोमामि वसुभ्यो कृष्णनोमामि मरुद्भ्यो कृष्णनोमामि रुद्रेभ्यो कृष्णनोमामि आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे कृष्णनोमामि बृहस्पतिगे कृष्णनोमामि मित्राय कृष्णनोमामि वरुणाय कृष्णनोमामि आदित्येभ्यो कृष्णनोमामि अश्विभ्यां कृष्णनोमामि पूष्णे कृष्णनोमामि कक्षाय कृष्णनोमामि कक्षदेवतसोमाय कृष्णनोमामि औपासनयज्ञाय कृष्णनोमामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो कृष्णनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णनिर्वपामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि जलं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योदर्शि समितिषि स्वाहा अमृतमजमारुणमसि अन्तरिदकं रक्षोऽन्तरिरारातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टारातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्ताद्विदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासविधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आच्य चुरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेकाच शतं च सहस्रं च आयतं च नियतं च प्रकितं च अर्पतं च निर्पतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्तो इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुमेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोदसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पिणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रथमा षष्ठे चतुरहस्राण्यगमक्षयमर्पदमानया अयन्तयद्मा आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तकिदात्मान् प्रतिगावजब्रह्मवत्यसेनान्नाद्येन समेधाय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा स्तुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्याचरं सावित्र्या गृहीत्वा जुह्वाव्याहृतेर्जुहोते ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमनेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निक्रमणि औपासनाग्नौ अग्निप्रतिष्ठान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवादिशत्वैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसमा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानधरे बलं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि विक्रमे
मे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोपण्यमोजाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुभ स्वाहा ॐ भूर्भुवः सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतीन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः वेलयुनी कल्याण वेदिका वेलयुनी कल्याण वेदिका मतिंदी कलिकी जवना पुयागमुसे सेनतडु वेलयुनी कल्याण वेदिका मतिंदी कलिकी जवना पुयागमुसे सेनतडु वेलयुनी कल्याण वेदिका मतिंदी कलिकी जवना पुयागमुसे सेनतडु रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः ओम श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिहलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तमेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकदमे पृथिव्युक्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कार महतं व्यक्ताक्षरत्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताश्चदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां पूर्वभागे भूलोके भुवर
अमरलोक समरलोक महरलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतमण्डलीकवामणकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तधार्वभौमसुप्रदीकाख्य अष्टदिक्दण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिदे अमरावदे तेजोपदे संयमने रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धवत्यलकापदे यशोपदे त्यष्टदेवपुरी विराजते इन्द्राग्नियमन्निरितिवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितरिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भो प्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजते भारतकिं पुरुषहारीनामृतपत्राश्वकेतुकमालकहिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुताम्रकभस्ति पुन्नागन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भारतखंडे मम अनेक जन्मसूजिह जन्म निचायेतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेशरहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापादकेन समस्त दुरितक्षयद्वारा दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतनासेन वर्षसहस्रावधाने एकैकतनापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखडोमणीन्द्रमदान भक्वादिर्मन्वादिर्वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्त गुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रशार्ंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत् वैखानस भगवत शास्त्र मार्गेण आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थिति लय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजोरत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्स्यमन आपनमान और्वैलवञ्जारुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवदीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित मादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगोत्सङ्गल्मदनयां उत्तर भगवनी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारैध्रवत्रगारुषेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवदीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित मादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकदिगीर्षगा कन्यां सालंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवता
प्रजाः निमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. மாங்கல்ய பூஜை என்றால் அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய இரு நாச்சிமார்களுக்கு கழுத்திலே அணிவிக்க வேண்டிய மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதோ அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி அதன் பின் மஞ்சள் குங்குமமிட்டு அக்ஷதை திருத்துழாய் போன்றவைகளால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாம் அந்த மாங்கல்யங்களை கண்களிலே செவித்து கொண்டு அதற்கான பலன்களையும் பூஜையையும் செவிக்கலாம். ஓம் நமோ நாராயணா. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அந்த மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்களிலே ஒரு அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம். அந்த கிருஷ்ணர் 16 பேர் நல்கும் பஞ்ச கிருஷ்ணராக சேவிக்கப்படுகிறார். பகவான் மகாவிஷ்ணுவின் 8வது அவதாரமே கிருஷ்ண அவதாரம். கோவிந்தன், கேசவன், கோபாலன் என அவனுக்கு 100க்கும் மேற்பட்ட திருநாமங்கள் உள்ளன. பக்தர்களை ரட்சிக்க பல்வேறு கோலங்களிலே காட்சி தரும் பரமாத்மா ஸ்ரீ யாதவ கண்ணன் என்ற திருப்பெயரிலே எழுந்தருளியுள்ள தலம் ஒரு உள்ள கரந்தை என்ற கருந்தாங்குடி, கருந்திட்டை குடி என்றும் பல பெயர்கள் உண்டு. அதிலே காவேரி நதியிலே கொடமுருட்டி வெண்ணாறு ஆகிய ஆறுகளுக்கு தெற்கிலும் வீர சோழ வடக்காருக்கு வடக்கிலேயும் அமைந்துள்ள இந்த தலத்திலே கிழக்கிலே புகழ்பெற்ற கருணாசாமி என்கின்ற ஒரு தலமும் பிருந்தாவனமும், வடக்கிலே கோடியம்மன் பிருந்தாமும், அங்கே இந்த எதுகுலத்திலே அவதரித்த கண்ணன் யாதவர்களின் குலதெய்வமாக விளங்கி வருகிறான். கரந்தை பகுதியை சேர்ந்த யாதவர்களின் தலைவனாக அவர்களின் கனவிலே கண்ணன் தோன்றி தனக்கு ஆலயம் ஏற்பாடு செய்ய சொல்லி அதன்படி கட்டப்பட்டதுதான் இங்குள்ள யாதவ கண்ணன் ஆலயம். அந்த யாதவ கண்ணன் ஆலயமானது சுமார் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தஞ்சை மாவட்டத்திலே கட்டப்பட்டதாம். தன்னுடைய பசுக்களுடன் அந்த பகுதி வீடுகளில் வளர்க்கப்படும் பசுக்களையும் சேர்த்து தினமும் மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து போவது வழக்கம். ஒரு நாள் அவர் வளர்த்த அந்த பசு ஒன்று கன்று ஈன்றது. தெய்வாம்சமாக விளங்கிய அந்த பசுவை அந்த பகுதி மக்கள் பார்த்து வியந்தனராம். ஏனென்றால் சில நாட்களுக்கு பிறகு அந்த புதிய கன்றையும் அவர் மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து சென்றார். ஆனால் அந்த கன்று மட்டும் மாலை வேளையிலே மேய்ச்சல் முடிந்தவுடனே வீடு திரும்பாமல் அங்கே உள்ள குளத்தின் அருகே சென்று சில மணி நேரம் மெய்மறந்து நின்றுவிட்டு திரும்புவது வழக்கமாக இருந்ததாம். அப்படி யாதவ தலைவர் அதனை கவனித்தாலும் அதனை காரணத்தை மட்டும் அவரால் அறிய முடியவில்லை. இந்த நிலையிலே ஒரு நாள் யாதவரின் கனவிலே அந்த கிருஷ்ணன் காளிங்க நர்த்தன கோலத்திலே தோன்றி, உமது இல்லத்திலே பசுங்கன்றாக அவதரித்த நான் இந்த திருக்குளத்தின் வேணுகானத்திலே பாடியபடி யாதவ கண்ணனாகவும் வேணுகோபால சுவாமியாகவும் காளிங்க நர்த்தன கிருஷ்ணனாகவும் கற்சிலையாகவும் உள்ளேன். வேணுகானத்தை கேட்கவே தான் தினமும் குளத்தின் அருகே சிறிது நேரம் நிற்கிறேன். குளத்திலே உள்ள சிலைகளை மீட்டு அருகிலேயே புதியதாக ஆலயம் கட்டி அந்த சிலைகளை பிரதிஷ்டை செய்து சேவியுங்கள். என்னை வழிபடுவோர்க்கு அனைவருக்கும் வரங்களை வாரி வழங்குகிறேன் என்றாராம். காலையில் எழுந்து பார்க்க அவர் வளர்த்து வந்த தெய்வாம்சம் பொருந்திய அந்த பசுவையும் காணவில்லையாம். அப்பொழுது அந்த தஞ்சையை ஆண்ட மராட்டிய மன்னன் அந்த ராமதாசரின் பிரதானமான சீடரான அந்த ஆதி பீமராஜனிடம் உபதேசம் பெற்றவர். அப்படி சிறந்த வைஷ்ணவ பக்தராக இருந்தவன் கனவிலே கிருஷ்ணன் கூறியதை கூறியபடி அதன் மூலம்
அந்த சிலைகளை வெளியே கொண்டு வந்து பின்னர் குளத்திற்கு அருகிலேயே புதிய கோவிலை கட்டுவதற்கான ஏற்பாடு இலவசமாக வழங்கியதோடு யாதவ தலைவர் கோவில் கட்டுவதற்கும் தேவையான நிதி உதவிகளை அளித்தாராம். இப்படியாக அந்த கோவில் அமைக்கப்பட்டது. அங்கே அந்த குளத்திலே கண்டெடுக்கப்பட்ட யாதவ கண்ணனை மூலவராக கர்ப்ப கிருஹத்திலும் காளிங்க நர்த்தன கிருஷ்ணனாக அர்த்த மண்டபத்திலும் வேணுகோபால சுவாமியை கிழக்கு சுற்றிலும் பிரதிஷ்டை செய்தனராம். அப்படி அந்த 5 கலசங்களுடன் கூடிய 3 நிலை பிரதான ராஜகோபுரம் தெற்கு நோக்கி கட்டப்பட்டுள்ளது. அதை கடந்து உள்ளே சென்றால் மகா மண்டபத்தின் எதிரிலே பலிபீடம், கொடிமரம், கருடாழ்வார் சன்னதிகள் உள்ளன. கிழக்கு சுற்றில் திருப்பதி வெங்கடேச பெருமாளும் அருகிலே அனைவருக்கு ருக்மிணி சத்யபாமா சமேத ஸ்ரீ வேணுகோபால சுவாமி மற்றும் ஆஞ்சநேயரையும் தரிசிக்கலாம். அந்த திருப்பதி வேங்கடவனுக்கு புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமைகள் பக்தர்கள் எப்படி மாவிளக்கேற்றி அர்ச்சனை செய்கிறார்களோ அதே போல் இங்கேயும் அந்த பகவானுக்கு செய்யப்படுகிறது. அப்படி அர்த்த மண்டபத்திலே காளிங்க நர்த்தன கிருஷ்ணன், திருமங்கை ஆழ்வார், ராமானுஜர், பெரியாழ்வார், நம்மாழ்வாரை ஒரே மேடையில் தரிசிக்க செல்லலாம் என்றும் ஆழ்வார்களுக்கு உரிய ஜென்ம நட்சத்திரத்தன்று சிறப்பு அபிஷேக அலங்கார தீபாராதனையும் நடைபெறுகிறதாம். இப்படி அந்த கர்ப்பகிருஹத்தின் நுழைவாயிலே துவார பாலகர்கள் ஜெயன் விஜயன் கம்பீரமாக காட்சி தருகிறார்கள். மூலவர் யாதவ கண்ணன், வேணுகோபால சுவாமி, காளிங்க நர்த்தன கிருஷ்ணன் மூவரும் கற்சிலைகளாக, மூவருக்கு முன்பாக பசுவுடன் கூடிய நவநீத கிருஷ்ணன் மற்றும் அருகிலே இருக்கும் சந்தான கிருஷ்ணன் இருவரும் பஞ்சலோக திருமேனியிலே எழுந்தருளி மொத்தம் 5 கிருஷ்ணர்களாக இந்த தலத்திலே தரிசிக்க பக்தர்கள் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியமாக செய்திருக்க வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார்களாம். இப்படி இங்கே இந்த பகவான்களை செவித்தால் 16 பேர்களையும் பஞ்சகிருஷ்ண தலங்கள் சென்று வழிபட்ட பலன்களை பெறலாம் என்றும் கூறுகிறார்கள். அப்படி கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்தவன் இங்கே இதோ திருமலையிலே வேங்கடவனாக எழுந்தருளி நமக்கு அருளி செய்து கொண்டிருக்கிறான். கல்யாண கோலத்திலே அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அப்படி அங்கே அந்த சந்தான கோபாலகிருஷ்ணன் குழந்தை பேரு அருளும் வரப்பிரசாதி என்றும், குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத தம்பதியர் ரோகிணி நட்சத்திரம் சனிக்கிழமை அமாவாசை என்று அவரவர் வசதிக்கேற்ப ஒரு நாளில் காலை 8 மணியிலிருந்து 9 மணிக்குள் அந்த தலத்திலே வந்து சந்தான கிருஷ்ணன் விக்கிரகத்தை பெற்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டால் அந்த தொட்டிலில் வைத்து தாலாட்டுகிறார்கள். சங்கல்பம் செய்து அதன் பிறகு வெண்ணெய், தேன், அவல், உலர்ந்த பழங்களை சந்தான கிருஷ்ணனுக்கு நிவேதனம் செய்து அதனை பிரசாதமாக பெற்று வீட்டில் ஒரு மண்டலம் சாப்பிட்டு வந்தால் விரைவிலே மழலை பேர் பெறலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த அந்த கோவிலிலே எழுந்தருளிருக்கும் பக்தன், அங்கு எழுந்தருளிருக்கும் விக்கிரகங்கள் பஞ்ச கிருஷ்ணார் எண்ணெய் கஷேத்திரங்களாக பஞ்ச கிருஷ்ணர்களாக கருதப்படுகிறது. குருவாயூர் செல்ல முடியாதவர்கள் கூட இந்த தலத்திலே குழந்தைகளுக்கு முதலாவது திட உணவை ஊட்டும், அதாவது அன்னப்பிராசனம், அதை கூட செய்து அங்கே சேவிக்கிறார்கள். प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदान्वसृत्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कंठे बध्नामि सुभगे जीवत्वं भुवनत्रयम्. श्रीदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु.
ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేదా అన్వసృత్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరద శతం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. చూచి చూచి నీ పెళ్ళికి సోవాన పాడేముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా? చూచి చూచి నీ పెళ్ళికి సోవాన పాడేముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా? చెక్కులు నొక్కేవు నీవు సెలవుల నవ్వేను ఆపి ఎక్కువలు మీలోనివి ఎట్లు తెలుసో? చెక్కులు నొక్కేవు నీవు సెలవుల నవ్వేను ఆపి ఎక్కువలు మీలోనివి ఎట్లు తెలుసో? తొక్కేవు పాదాలు నీవు దొరకని మొక్కేను ఆపి తొక్కేవు పాదాలు నీవు దొరకని మొక్కేను ఆపి పక్కన నీ పావాలు ఏరుపరచగలమా? పక్కన నీ పావాలు ఏరుపరచగలమా? చూచి చూచి నీ పెళ్ళికి సోవాన పాడేముగాక నీ చేత శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యక్రమణే ఉపాసనాగ్నో ప్రధాన హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవత ప్రసవా. ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగం సోస్య ప్రజామంత్యమృత్య భాషాదే తదయకం రాజావరణో మన్యదాం కిధేయక స్త్రీపౌత్రమకన్నరోధాత్ స్వాహా. ఇమం మే వృణశ్రుతి హవమత్యాచమృణయ రామవస్య రాజకే స్వాహా. తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమాన సదాశాస్తే గిరమాణో హవిర్పిః అహేడమాణో వరుణే హవోదృశకం సమాన ఆయు ప్రమోషి స్వాహా. తన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో మయా సతీష్ఠాః యజిష్టో వన్హితమస్సోషితానో విశ్వాన్ ద్వేషాకం సిప్రమవతి హస్మత్ స్వాహా. సత్వన్నో అగ్నే మమ భవతే నేతిష్టో అస్యాపశతో వ్యష్టౌ అవయక్ష్మణో వరుణకం మృడానో వీహమృటీకకం సహవో నయేధి స్వాహా. త్వమగ్నే అయాస్యయా సన్మనసాహితః అయాసన హవ్యమోహితే జానో దేహిభేషటగ్ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా. అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసవిద ప్రాసామి. శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యక్రమణే ఉపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యే తదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసవా. ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా. ఓం ఇమాన్ లాజానా వపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానా వపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషా స్మాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను
विश्वावतत्मया वयन्धारावतन्या इवा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः सर्वप्रायश्चित्तार्थं मतो देवादिशत्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नरसेपदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमोजाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिन्द्रक्रमणे औपासनाग्नो कर्मसात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा यतस्य कर्मणोऽतिनीरजं यद्वान्योनिमहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृतान् सर्वग्स्विष्टकं जुहुतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपदये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा येधोऽस्येदशेमहि स्वाहा समितसितेजोषि तेजोमयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्तदिक्पा सप्तऋषिः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदन्ति सप्तयोनिनापरस्वाकृतेन स्वाहा रथधान विद्वान् नष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदज्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरहविना कृतेन समादित्येन वसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपितामः प्रपदामहाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्तां दिदेन्वमुकुस्ताः नमदेन्वमुकुस्ताः सरस्वतेन्वमुकुस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा संविदास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामेक्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्टोग्रं वचो अवावधीन् त्वेषं वचो अवावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नगिदम्माजीक्वर्तमत्र मेधामष्टन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसि उत्तरतो विष्णोः सुतनमसि प्राच्यां विष्णोः सुतनमसि सर्वानन्यान् परसमूह्य ग्रन्थीन् विसृज्य अर्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनकं शुद्ध्यन्तान् देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषाम् यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम्
दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसेत्रयायुषाम् आबोहिष्टामयो भवस्तानमूर्ते तथातन महेरणाय दिक्षसे यो स्मारङ्गमामभो यस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्मि भूजा संयुत्तेऽग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्मि भूजा संयुत्तेऽग्ने हरस्ते नाहं हरस्मि भूजा मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो तथा मयि मेधा मयि प्रजा मयि इन्द्रियं तथा मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो तथा मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं रासनाय करन्दमया देव परिपूर्णतस्मै प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वैदानि शेषावजेडानां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आच्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु विघ्नेश्वराय नमः यथासुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். வாரணமாயிரம் கைங்கரியமானது ஆண்டாளுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலம். நாச்சியார் திருமொழி என்னும் பாசுரங்களிலே 143 பாசுரங்களிலே 11 பாசுரங்களை தேர்ந்தெடுத்து தான் கனவு காணும் அந்த பாசுரங்களாக மாற்றி தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறுகிறாள் ஆண்டாள். அப்படி அந்த 11 பாசுரங்களையும் பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள் அர்ச்சக சுவாமி மற்றொருவரும். ஆக இந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை ஆண்டாள் தன்னுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இது. அதை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளிய ஆண்டாளானவள் மகாலட்சுமியின் அம்சமாக அவதரித்தவள், பெரிய ஆழ்வாரின் பெண்ணாக வளர்க்கப்பட்டவள். அவர் கோதா என்றும் ஆண்டாள் என்றும் சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் என்றும் பெயரிட்டு வளர்த்து வந்து புஷ்பமாலைகளை தொடுக்க பயிற்சி கொடுத்தார். அந்த புஷ்ப மாலைகளை தொடுத்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பாள் ஆண்டாள். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. பகவான் அனுப்பிய அந்த மாலையை ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவித்துவிட்டு திரும்பவும் வேங்கடவனுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று வேங்கடவன் அனுப்பிய மாலையை மீண்டும் பூமி பிராட்டி அம்சத்திலே எழுந்தருளிய ஆண்டாளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அவள் சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அந்த சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் கழுத்திலே அணிந்து கொண்டு மாலையை களைந்து கொடுக்கிறாள். ஆகையால் தான் அவள் சூடிக் கொடுத்த நாச்சியாரானார். அவளை திருமணம் செய்து கொண்டதால் தான் விஷ்ணு சித்தரானவர் பெரியாழ்வாரானார். இப்படியாக மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய இடது வலது பக்கத்திலே அமர்த்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து மூவரின் சிரசின் மீதும் அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்புராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. பக்தர்களே,
எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்தீர்கள். அதேபோல் தொலைக்காட்சி மூலம் சேவிக்கும் பக்தர்களுக்கும் கூட பகவானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டி ஓம் நமோ வெங்கடேசாய், லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ